بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک اسرائیلی حاکم نے فاتحانہ انداز میں جناب علی اسد اللہ تبریزی کو فون پر اطلاع دی ہے، ہاں یہ درست ہے، تم لوگ محتاط رہو، ایک دوسرے کے دماغ میں زیادہ دیر رہ کر دشمنوں کو اور موقع نہ دو، خدا حافظ۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر آئینے کے سامنے آیا، پیشانی اور چہرے سے لہو پونچھ کر زخم کو صاف کیا، پھر دوا لگا کر اس پر پٹی چپکا دی۔ مجھے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اپنی بہن کو سمینہ کی موت کی اطلاع کیسے دوں گا۔ جب میرا دل ٹکڑے ہو رہا تھا تو بہن کی کیا حالت ہوگی؟ ویسے یہ دردناک اطلاع دوں یا نہ دوں، اس کے پاس جانا ضروری تھا۔ وہ اور کامران دشمنوں کی قید میں تھے۔ جب میں پچھلی بار شاہینہ کے پاس گیا تو وہ ہوش میں تھی، لیکن کسی تاریک چار دیواری میں تھی۔ اس نے رو رو کر مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے بچوں کی حفاظت کروں۔ میں نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور ناکام رہا تھا۔ آخر میں نے دل کڑا کر کے خیال خوانی کی پرواز کی، شاہینہ کے دماغ میں پہنچا، پھر واپس آ گیا۔ وہ بے ہوش تھی، پتہ نہیں دشمنوں نے اسے کیوں ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا یعنی میرا بھانجا کامران بھی کہیں بے ہوش پڑا تھا۔ فی الحال دشمنوں کی یہی چال سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ شاہینہ اور کامران کو اغوا کر کے اس شہر یا اس ملک سے دور کہیں لے جا رہے تھے۔ انہیں اس لیے بے ہوش کر دیا تھا کہ ہم ان کے دماغوں میں رہ کر ان راستوں کو معلوم نہ کر سکیں جہاں سے وہ لے جائے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں انہیں کہاں پہنچایا جا رہا تھا۔ اگر دشمنوں نے ملک سے باہر لے جا رہے تھے تو سب سے قریب ترین ملک ہندوستان تھا، اور ہندوستان سے یہودیوں کے تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ گولڈن برینز نے دھمکی دی تھی کہ پہلے سمینہ کو قتل کیا گیا ہے، اگر میں پاکستان سے واپس نہ گیا اور یہودی ایجنٹس کے لیے پاکستان میں مصیبت بنتا رہا تو وہ سمینہ کے بعد کامران کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر میں نے ان کی شرائط پر عمل نہ کیا تو وہ میری بہن شاہینہ کو بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ میری بہت بڑی کمزوری ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں وہی ایک بہن تھی جسے میں نے بیٹی کی طرح گود میں کھلایا تھا۔ انہوں نے اسے چھین کر جیسے میرے اندر سے کلیجہ نکال لیا تھا۔ یہ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنا تھا کہ بھانجے اور بہن کو بھی قربان کر دوں یا یہودیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں۔ اگر میں ان کی شرائط مان لیتا، پاکستان چھوڑ دیتا، سوزینہ اور گیبریل گرانٹ کو اسرائیل سے واپس بلا لیتا اور پاکستان کو یہودیوں کی تجارتی منڈی بننے دیتا تو وہ میرے بھانجے اور بہن کو قتل نہ کرتے، انہیں زندہ رہنے دیتے لیکن اپنی قید سے رہا نہ کرتے۔ میری بہن کو ہمیشہ میری کمزوری بنا کر اپنی قید میں ایسی جگہ رکھتے جہاں میں کبھی پہنچ نہ پاتا۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا، وہ بولی، مجھے افسوس ہے فرہاد، انہوں نے معصوم سمینہ کی زندگی چھین لی۔ ابھی سلمان نے بتایا ہے کہ کامران اور شاہینہ بے ہوش ہیں، دشمنوں نے انہیں دوسری بار بے ہوش کیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا، شاید وہ ماں بیٹے کو ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ ان کی بے ہوشی کے باعث ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے برا ہو رہا ہے۔ وہ شاہینہ کو ہمارے خلاف زبردست مہرہ بنا کر رکھیں گے۔ جب تک ہم شاہینہ اور کامران کو رہائی نہیں دلائیں گے تب تک ہمیں یہودیوں کے اشاروں پر ناچنا ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ فی الحال ہم خاموشی اختیار کریں، یہودیوں سے رابطہ نہ کریں۔ کوئی دماغی رابطہ کرنا چاہے تو ہم سانس روک لیں۔ اپنے تمام خیال خوانی کرنے والوں سے کہہ دو کہ 12 گھنٹے تک آپس میں بھی خیال خوانی نہ کریں۔ تم سب میرے پاس بھی نہ آؤ، ورنہ دشمنوں کو ہمارے اندر آ کر خاموشی سے ہماری گفتگو سننے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن 12 گھنٹے کے اندر مجھے اپنوں میں سے کسی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو تو جناب علی اسد اللہ تبریزی صاحب سے رابطہ کرو اور ان کے پاس ضروری پیغام چھوڑ دو۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ سونیا کے مشورے سے یہ بوجھ ہلکا ہوا کہ ابھی یہودیوں سے بحث و تکرار نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنی شرائط منوانے کے لیے ہم میں سے کسی کے دماغ میں بھی آئیں گے تو ہم سب سانس روک لیں گے۔ یوں جب تک میری ہاں یا نہ کا جواب نہیں ملے گا تب تک وہ کامران اور شاہینہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں قتل کرنے کے لیے کم از کم 12 یا 24 گھنٹوں تک انتظار کریں گے۔ میں پارس کے پاس پہنچا تاکہ اسے بتا دوں سمینہ پر کیا گزری ہے اور آئندہ اس کی پھپھی اور پھوپھی زاد بھائی پر کیا گزرنے والی ہے۔ جب وہ ملتان روڈ پر ٹھوکر کی طرف جاتے ہوئے دشمنوں کو تلاش کر رہا تھا
तब मैंने उसे एक गाड़ी का रंग और नंबर बताए थे। वो उस गाड़ी को तकरीबन 1 घंटे तक तलाश करता रहा मगर नाकाम रहा। 200 किलोमीटर तक जाने के बावजूद वो गाड़ी नज़र नहीं आई तो ये बात समझ में आ गई कि दुश्मन पीछे किसी आबादी में रह गए हैं या किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गए हैं। वो वापसी पर छोटी बड़ी आबादियों में जाकर ढूंढने लगा। एक जगह दूर दरख्तों के पीछे एक गोदाम नुमा बड़ी सी 4 दीवारी नजर आई। जरा करीब जाने पर उसी रंग और नंबर की गाड़ी नजर आ गई। उसने एक झाड़ी के पीछे अपनी कार खड़ी की, फिर छुपता हुआ गोदाम की तरफ जाने लगा। ऐसे ही वक्त एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। गोदाम के पीछे खेतों का सिलसिला था। फसल कट चुकी थी, इसलिए वो खेत दूर तक वसी और अरीज मैदान हो गए थे। कहीं दूर से आने वाला हेलीकॉप्टर उसी मैदान में उतर रहा था। गोदाम से 3 आदमी बाहर आकर हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। पारस उनके पीछे एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया था। उनमें से एक कह रहा था, ये वक्त से पहले चला आया है। वो औरत तनवीमी नींद सो रही है और उसके बेटे पर तनवीमी अमल हो रहा है। क्या तुम्हारे दिमाग में वो बोल रही है? हाँ, मैडम मुझसे कह रही हैं कि हेलीकॉप्टर वालों को आधे घंटे तक रोका जाए। पारस ने समझ लिया कि शाहीना या समीना पर तनवीमी अमल हो चुका है। चूंकि उस शख्स ने औरत से कहा था, इसलिए वो शाहीना हो सकती थी। फिर ये भी कहा था कि उसके बेटे पर अमल हो रहा है, यानी कामरान भी वहाँ था। मुश्किल ये थी कि वो दोनों अपनी रिहाई के लिए पारस के साथ ताउन नहीं कर सकते थे। वहाँ गाफिल पड़े हुए थे। वो दुश्मनों से 2-2 हाथ करते हुए माँ बेटे को अपनी कार तक नहीं पहुँचा सकता था। गोदाम के अंदर कुछ और लोग थे। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आने वालों ने तादाद में इजाफा कर दिया था। वो दीवार की आड़ से निकलकर दूसरी तरफ जाना चाहता था। उसी वक्त मैं उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, यहाँ फुफ्फी और कामरान हैं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है। उनके अलावा कोई ख्याल ख्वानी करने वाली एक शख्स के दिमाग में रहकर उन्हें गाइड करती है। कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला कामरान पर अमल कर रहा है और फुफ्फी पर तनवीमी अमल हो चुका है। मैंने कहा, बेटे, बदबख्त यहूदियों ने समीना को मार डाला है। मुझे बहन के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। अब इन दोनों को हर हाल में यहाँ से जिंदा सलामत ले जाना होगा। कोई शख्स हेलीकॉप्टर से उतरकर गोदाम की तरफ आ रहा था। मैंने कहा, वो जो आ रहा है वो गोदाम के लोगों से बातें करेगा। उनके अंदर रहने वाली उस आने वाले के दिमाग में जाएगी। तुम उनकी बातें सुनो ताकि मैं भी उसके दिमाग में पहुंच सकूं। पारस वहां छुपा रहा। हेलीकॉप्टर से आने वाले ने एक शख्स से मुसाफहा करते हुए कोड वर्ड्स अदा किए। मैं गुलाब के देश से आया हूँ, चंबेली का फूल ले जाऊंगा। हिंदुस्तान का कौमी फूल गुलाब है और पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली। ये वाज़ेह हो गया कि वो हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान से आया है और उसमें शाहीना और कामरान को ले जाया जाएगा। गोदाम के एक शख्स ने कहा, चंबेली सो रही है, उसके बेटे पर अमल किया जा रहा है, कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना होगा। आने वाले ने कहा, मैं रिटायर्ड मेजर के वर्मा हूँ, यहाँ हमारी परवाज़ गैर कानूनी है। आधा घंटा बहुत होता है, हम खतरात में घिर सकते हैं, प्लीज़ जल्दी करो। मैं मेजर वर्मा के अंदर पहुँच गया था। एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली कह रही थी, मेजर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ 2 टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे बता दिया गया था कि टेलीपैथी जानने वाले मुझसे दिमागी राबता कायम करेंगे। मैं तुम्हारी आमद से मुतमईन हूँ। फिर भी यहाँ के सुराग रिसानों से टकराए बगैर जल्द से जल्द चले जाना दानिशमंदी होगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ज़रा इंतज़ार करो, अभी आती हूँ। वो चली गई। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया वो ऐसा हेलीकॉप्टर लाया था कि पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो ये साबित ना होता कि वो भारत से आया है। के वर्मा का ताल्लुक अब वहाँ की फ़ौज से नहीं था। उसके साथ 2 मुसल्ला मुहाफ़िज और एक पायलट था और वो सब गैर फौजी थे। रिटायर्ड मेजर के वर्मा ने पीछे आने वाले एक मुसल्ला गार्ड से कहा, पायलट से जाकर कह दो ज़रा देर लगेगी। गार्ड ने कहा, सर पायलट बहुत घबराया हुआ है। वो बोला, नॉनसेंस, उसे हौसला दो और बताओ कि हमारे साथ टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जाने लगा। मैंने पारस से कहा, किसी तरह हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचो, मैं मुसल्ला गार्ड को ट्रैप कर रहा हूं। फिर मैंने सलमान और सुल्ताना के लिए जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब को पैगाम दिया कि शाहीना और कामरान तनवीमी नींद में हैं। नींद पूरी होने से पहले उन्हें ट्रांस में लाया जा सकता है और दुश्मनों के तनवीमी अमल का तोड़ किया जा सकता है। ये जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने फरमाया, बेटे
अल्लाह ने चाहा तो दुश्मनों के अमल का तोड़ हो जाएगा। तुम अपना काम करो। मैंने पारस के पास आकर कहा, रुक जाओ, हेलीकॉप्टर की तरफ ना जाओ। तुम्हारी फुफ्फी और कामरान पर तनवीमी अमल का तोड़ होने वाला है। इस अमल के दौरान किसी को उनके करीब जाने ना दो। गोदाम के अंदर पहुंचो। वो फिर गोदाम की तरफ जाने लगा। मैंने एक शख्स के जरिए गोदाम के मज़ीद 3 आदमियों के दिमागों में जगह बनाई। फिर मुसल्ला गार्ड के पास पहुंचा। वो पायलट को तसल्लियां दे रहा था और पायलट परेशान होकर कह रहा था, हमारी कंपनी के मालिक को अगर मालूम होगा कि मैं एक रिटायर्ड मेजर के कहने से गैर कानूनी परवाज के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आया हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे जेल पहुंचा देगा। यहाँ कोई गड़बड़ होगी तो मेजर क्या करेगा? मैं नहीं जानता कि टेलीपैथी जानने वाले कितने पावर वाले होते हैं। मैं मुसल्ला गार्ड को हेलीकॉप्टर से उतार कर नीचे लाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक नीचे आकर पेट्रोल की टैंकी का ढक्कन खोल दिया। जेब से रुमाल निकालकर उसे टैंकी में डालकर पूरी तरह भिगोया। फिर पेट्रोल से भीगे हुए आधे रुमाल को टैंकी के अंदर और आधे रुमाल को टैंकी से बाहर रखा और इसके बाद लाइटर को सुलगाया। आग रुमाल में लगी। फिर उसके शोले लपकते हुए टैंकी के अंदर गए। गोदाम के दरवाजे पर 4 अफराद खड़े बातें कर रहे थे। यकबारगी क़यामत का धमाका हुआ। चारों के कदम उखड़ गए। वो उछलकर ज़मीन पर गिर पड़े। हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए थे। शोले आसमान की तरफ जा रहे थे और उसके टुकड़े गोदाम की तरफ आ रहे थे। उनमें मुसल्ला गार्ड्स और पायलट के टुकड़े भी शामिल थे। मैंने के वर्मा के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने रिवॉल्वर निकालकर पहले उस शख्स को गोली मारी जिसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाली आती थी। फिर उसने दूसरे पर फायर किया। तीसरे ने के वर्मा को शूट करते हुए कहा, पागल हो गया है, दोस्त बनकर हमें मारने आया है। मैंने तीसरे के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे पारस की तरफ दौड़ाया। फिर उसकी जुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, ये गन तुम्हारे लिए है। उसने दूर से गन उछाली। पारस जहाँ छुपा हुआ था वहाँ करीब एक स्ट्रेचर पर शाहीना और दूसरे स्ट्रेचर पर कामरान थे। दोनों गाफिल पड़े हुए थे। एक शख्स शाहीना का निशाना ले रहा था। पारस ने उसे गोली मार दी। उधर जो भी आ रहा था पारस की गोलियों से छलनी हो रहा था। यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों को यकीन हो गया था कि शाहीना और कामरान उनके हाथों से निकल जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों को ख़त्म कर देना चाहते थे। अपने आलायकारों के अंदर रहकर उन पर कातिलाना हमले कर रहे थे और अपने एक आलायकार से महरूम होते जा रहे थे। आखिर मैदान साफ हो गया। मैंने कहा, बेटे अभी फुफ्फी और कामरान को हाथ ना लगाना, शायद सलमान और सुल्ताना उन पर अमल कर रहे हैं, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने सलमान के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर पूछा, क्या शाहीना और कामरान पर अमल हो रहा है? उसने कहा, हमने दुश्मनों के तनवीमी अमल का तोड़ कर दिया है। इसके बाद हम उनके दिमागों में ये नक्श करना चाहते थे कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही अपनी सांस रोक लिया करें, लेकिन हमें उसका मौका नहीं मिला। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले आ रहे थे और उनकी सांसें रोक कर उन्हें मार डालना चाहते थे। मैं कामरान के दिमाग पर और सुल्ताना शाहीना बहन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाए हुए हैं। दुश्मन वक्फे वक्फे से आ रहे हैं और नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। उनकी हिफाजत करते रहो, मैं अभी आता हूँ। मैंने पारस से कहा, अपनी फुफ्फी और कामरान को उठाकर कार में ले जाओ। लैला तुम्हारे पास रहेगी। कोई गड़बड़ होगी तो मुझे इतला मिल जाएगी। मैंने लैला को पारस के पास जाने के लिए कहा। फिर इसराइल के एक आला हाकिम को मुखातिब किया, तुम लोगों ने मेरी भांजी को कत्ल करके एक कमीनगी दिखा दी। अब मेरी इंतकामी कार्रवाई के लिए संभल जाओ। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गोल्डन ब्रेन से राबता करवाओ। उसने राबता किया। कंप्यूटर के ज़रिए गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से स्क्रीन पर तहरीर उभरी। मैंने आला हाकिम के ज़रिए तहरीर को पढ़ा। वहाँ लिखा था, हमें इतला मिल गई है, फरहाद ने अपनी बहन और भांजे को हमारे आदमियों से छीन लिया है। उसे कह दो ये आर्जी कामयाबी है। उसके टेलीपैथी जानने वाले कब तक शाहीना और कामरान की हिफाजत करेंगे? हमारे टेलीपैथी जानने वाले हर 2 मिनट बाद उन दोनों के दिमागों में जाते रहेंगे। फरहाद की इतनी बड़ी कमजोरी को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। मैंने कहा, जब तक दुश्मन मेरी बहन और भांजे के दिमागों में आते रहेंगे तब तक तुम्हारे मुल्क की एक एक मिल और फैक्ट्री तबाह होती रहेगी। एक नमूना देख लो, मैं फिर आऊँगा। हमने सुजैना और गैब्रिल को इसराइल भेजने से पहले कई मिलों और फैक्ट्रियों के मालकान को दिमागी तौर पर अपना आलायकार बनाया था और उनके ज़रिए उनकी मिलों में कई मकामात पर बम छुपा कर रख दिए थे। पिछली बार इसी तरीक़ाकार के मुताबिक
एक बहुत बड़ी मिल को हमने तबाह किया था। इस बार फिर एक मिल की बारी आई। मैं नहीं चाहता था कि वहां के बेगुनाह मजदूर मारे जाएं, इसलिए मैंने मिल मालिक के जरिए खतरे का सायरन ऑन कराया। तमाम मजदूर मशीनों को बंद करके दौड़ते हुए मिल से बाहर जाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड खतरे के मुतालिक मालूम करने के लिए मालिक के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त वहां पहला धमाका हुआ। जो बाकी रह गए थे वो अपनी जानें बचाने के लिए बाहर दौड़ते हुए जाने लगे। इसके बाद वक्फे वक्फे से धमाके होते चले गए। मैंने आला हाकिम के जरिए गोल्डन ब्रेन से कहा, तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले हर 2 मिनट के बाद मेरी बहन और भांजे के दिमाग में जाएंगे और मैं हर 2 मिनट के बाद एक एक मिल और फैक्ट्री को तबाह करता रहूंगा। अब बोलो, ये सौदा मंजूर है? स्क्रीन पर तहरीर उभरी, ये हमें मंजूर नहीं है, हम अपना चैलेंज वापस लेते हैं। तुम्हारी बहन और भांजे के दिमागों में कोई नहीं जाएगा। मैंने पूछा, अगर कोई वहां छुप कर रहेगा तो? हम वादा करते हैं कोई वहां छुप कर भी नहीं रहेगा। मैंने वापस आकर सलमान को तमाम रूदाद सुनाई। वो कामरान के दिमाग में था। मैंने कहा, अगर कोई यहाँ छुपा हुआ है तो गोल्डन ब्रेन्स के पास अहकामात हासिल करने के लिए जाए। यही बात मैंने सुल्ताना के दिमाग में आकर बोल दी। उसे भी तमाम हालात बता दिए। वो दोनों मुतमईन होकर शाहीना और कामरान के दिमागों पर अमल करने लगे। पारस उन माँ बेटे को घर ले आया था। वो दोनों आराम से अपने बेड पर थे। लैला उनके अंदर आती जाती थी और ये मालूम करने की कोशिश करती थी कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले तोड़ ना कर रहे हों। उस कोठी के सामने अहाते के अंदर समीना की जो लाश पड़ी हुई थी उसे पुलिस वाले ले गए थे। पड़ोसियों ने बताया था कि वो फरहाद अली तैमूर की भांजी की लाश है। पुलिस अफसरान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने एक अफसर के अंदर आकर कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। मेरी बहन की कोठी के सामने मिस्टर ऑनर डिसोजा रहते हैं। उनका बेटा पीटर डिसोजा आपके पास आ रहा है। लाश उसके सुपुर्द कर दें। पारस वो लाश घर ले आया। पड़ोसियों की मदद से तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात करने लगा। 1 घंटे बाद शाहीना और कामरान तनवीमी नींद से बेदार हो गए। सलमान और सुल्ताना ने उनके दिमाग को लॉक कर दिया था ताकि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उन्हें ट्रैप ना कर सके। उसके साथ ही शाहीना के अंदर बड़े से बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा कर दिया था। जब उसे बेटी की मैयत के पास लाया गया तो उसने आंसू बहाए, लेकिन सदमे से निढाल नहीं हुई। मैं उसके दिमाग में आकर उसे तसल्लियाँ देता रहा। उसने मुझसे शिकायत नहीं की और ना ही शर्मिंदा होने दिया कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत ना कर सका। उसे यकीन था जिस तरह मैंने अपने बहनोई के कातिलों से इंतकाम लिया था, इसी तरह समीना के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने शाहीना और कामरान को आजमाया था। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। अगरचे वो योगा के माहिर नहीं थे, लेकिन आम लोग भी 15-20 सेकंड सांस रोक लिया करते हैं। शाहीना और कामरान के दिमागों में ये बात भी नक्श की गई थी कि वो माँ बेटे सुबह शाम सांस रोकने की मश्क किया करेंगे। मैंने फिर इसराइली आला हाकिम के जरिए गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब किया और कहा, मेरी बहन और मेरा भांजा महफूज हैं। तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में नहीं आए। मैंने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, फिर किसी मिल या फैक्ट्री को तबाह नहीं किया है। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी, मिस्टर फरहाद, बहन और भांजे को पाकर तुम भी मुतमईन हो और हम भी मुतमईन हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज तबाह नहीं होंगी। अगर हम तुम इसी तरह दानिशमंदी और समझौते से काम लेते रहे तो किसी को किसी से शिकायत नहीं रहेगी। मैंने कहा, दानिशमंदी तो तुम लोगों को छू कर नहीं गुजरी। तुम अपनी मकारियों को दानिशमंदी कहते हो। अगर मेरी बहन और भांजा अभी तुम्हारे शिकंजे में रहते तो फिरौन बनकर बातें करते। क्या अब मुझे मजबूर कर सकते हो कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं? मिस्टर फरहाद, ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी कोई गालिब आता है और कभी कोई बाजी जीत लेता है। हम अपनी तबाही से सबक सीख रहे हैं। तुम अपनी भांजी की मौत से नसीहत हासिल करो। आइंदा फिर तुम्हारी कोई कमजोरी हमारे हाथ आ सकती है। और तुमने देखा कि मैं समीना के कत्ल होने और बहन भांजे के अगवा होने पर तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने नहीं आया। तुम भी मुझे नसीहत करने के बहाने ना गिड़गिड़ाओ। मैं समीना के खून का बदला लूंगा। अगर अंधाधुंध इंतकाम लूं तो कई बेगुनाह भी मारे जाएंगे, इसलिए मेरा इंतकाम दूसरी नोयत का होगा। स्क्रीन पर तहरीर उभरी, तुम क्या करना चाहते हो? बिगड़ा हुआ मुकद्दर ये नहीं बताता कि वो किस तरह बिगड़ेगा। आगे आगे देखो होता है क्या। स्क्रीन पर जवाबी तहरीर उभर रही थी। मैंने आला हाकिम के जरिए उसे नहीं पढ़ा। वहां से चला आया ताकि उन्हें मेरी तरफ से जवाब ना मिले और वो ये सोचकर उलझते रहें कि ना जाने मैं आइंदा क्या करने वाला हूं।
अली तैमूर ने आंखें खोल दीं। तन्वीमी नींद से बेदार हो गया। वो बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ा हुआ छत को तक रहा था और सोच रहा था, मैं कहाँ हूँ। वो उठकर बैठ गया। उसे याद आ रहा था कि लैला ने तन्वीमी अमल के जरिए अली तैमूर की शख्सियत भुला दी थी। तब से वो खुद को भूला हुआ था। पहले जॉन कार्लो की हैसियत से नई जिंदगी शुरू की, फिर राइमा के चक्कर में पड़कर एडी फिशर बन गया था। अब अपनी असलियत याद आने के बाद उसे यह सब कुछ याद आ रहा था। लैला ने उस पर अमल करते हुए उसकी यादाश्त में जॉन कार्लो, राइमा और एडी फिशर के तमाम वाकयात को ताज़ा रखा था। अब उसे भी ये याद आ रहा था कि वो राइमा से पीछा छुड़ाकर पुलिस वालों से मुकाबला करता हुआ सुजैना और गैब्रियल की कोठी में आ गया था। उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सुजैना अंदर आई। वो उसे देखकर उठते हुए बोला, ओ माय डार्लिंग आपा जान। सुजैना दोनों बाहें फैलाकर आगे बढ़ी। वो पीछे हटकर बोला, तुमसे गले मिलते ही सातों तबक रोशन हो जाते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी कुव्वत से नहीं मोहब्बत से मिलूंगी, आओ। आपा जान ने उसे खींचकर गले लगा लिया। वो सांस रोक कर बोला, तुम्हें अपनी कुव्वत का अंदाज़ा ही नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो। उसने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। फिर कहा, अम्मी ने कहा था तुम ठीक सुबह 6 बजे बेदार हो जाओगे। जाओ गुस्ल करो, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो सब लैला को पाकिस्तानी ज़ुबान में अम्मी कहते थे। 1 घंटे बाद जब वो गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता कर चुका तो लैला उसके पास आई। उसे तमाम हालात बताए। तुम्हारे पापा और पारस पाकिस्तान में हैं। यहूदियों के एक एजेंट ने तुम्हारे फूफा को पहले कत्ल किया। तब से तुम्हारे पापा इस मिशन पर हैं कि यहूदियों का कोई माल पाकिस्तान में नहीं पहुंचने देंगे और पाकिस्तान से यहूदियों के तमाम दलालों को नाबूद कर देंगे या उन्हें मुल्क छोड़ देने पर मजबूर कर देंगे। इसी झगड़े में यहूदियों ने तुम्हारी फूफीजाद बहन समीना को कत्ल कर दिया है। लैला ने उसे तमाम रूदात तफसील से सुनाई। उन्होंने कहा, आप पापा को बता दें कि मैं बेदार हो गया हूँ और उनसे मौजूदा मसाइल पर बातें करना चाहता हूँ। लैला ने मुझे इत्तला दी। मैंने बेटे के पास आकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने दुश्मनों के सर पर सवार होकर आंखें खोली हैं और ख़ुद को पहचाना है। जब यहूदियों को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म होगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। तुम बड़े चक्रों में पड़कर यहाँ पहुँचे हो। खुदा जो करता है बेहतरी के लिए करता है। पापा, समीना का खून रायगान नहीं जाएगा। हाँ बेटे, मैंने गोल्डन ब्रेन से कहा है कि अंधाधुंध इंतकाम लूँगा तो कई बेगुनाह मारे जाएंगे, इसलिए मेरे इंतकाम की नोयत दूसरी होगी। आप क्या करना चाहते हैं? उनके ख्याल ख्वानी करने वालों को ख़त्म किया जाए। ये टेलीपैथी के हथियारों से महरूम होते रहेंगे और समीना के कत्ल को याद करके तौबा करते रहेंगे। ठीक है पापा, मैं यहाँ उनके टेलीपैथी जानने वालों तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। कातबे तकदीर ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है। अब तुम गोल्डन ब्रेन्स को तलाश करोगे। वो तादाद में 6 हैं। एक का भी सुराग मिलेगा तो बाकी 5 तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उनकी शाहराग तक ज़रूर पहुँचूँगा। मैंने पूछा, तुमने जो जॉन कार्लो और एडी फिशर की ज़िंदगियाँ गुजारी हैं वो सब तुम्हें याद है? जी हाँ, एक एक बात याद है। अपने जहन में राइमा की आवाज़ और लहजे को दोहराओ, मैं सुन रहा हूँ। अली ने राइमा का तसव्वुर किया, फिर उसकी आवाज़ और लहजे को याद करते हुए सोच के ज़रिए दोहराने लगा। जिस तरह हम लोग टेलीफोन के ज़रिए किसी की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाते हैं, इसी तरह अली तैमूर की सोच टेलीफोन की तरह वाज़े तौर पर राइमा की आवाज़ और लहजा पेश कर रही थी। ऐसा हर एक की सोच के ज़रिए नहीं हो सकता। जिसकी यादाश्त मजबूत और मुस्तहकम होगी उसी से दूसरों की आवाज़ और लहजा पूरी वजाहत से सुना जा सकता था। बहरहाल मैं अली की गैर मामूली यादाश्त के सबब राइमा के दिमाग में पहुंच गया। उसके अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़ने से पता चला कि उसका दिमाग मैदान जंग बना हुआ है। उसकी सोच ने बताया, यहूदियों ने अपने यहाँ मुझे पनाह दी, लेकिन कॉफ़ी में दिमागी कमज़ोरी की दवा मिलाकर पिला दी और मेरे कमज़ोर दिमाग पर कब्ज़ा करके तनवीमी अमल करने लगे। बाद में पता चला डैनियल के मदाखलत करने के बायस जेम मॉर्गन का अमल नाकाम रहा है। राइमा की सोच वही बता रही थी जो उस पर गुजरती रही थी। अल्पा भी उसके दिमाग में छुपी हुई थी। बाद में अल्पा ने आकर कहा, राइमा, तुम्हारे दिमाग में जॉन लैम्बोडा भी आ रहा है। अगर फरहाद को मालूम होगा कि तुम जहनी इंतशार में मुब्तला हो, अब भी तुम पर कोई तनवीमी अमल नहीं कर सकता है, तो वो फरहाद भी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। तुम्हें किसी की तरफ से अंदेशा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। राइमा की सोच ने बताया कि यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों में जेम मॉर्गन और अल्पा बारी बारी उसके दिमाग में मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ जॉन लैम्बोडा के 2 ख्याल ख्वानी करने वाले पास्को रूट
और फ्रेज़र भी बारी बारी मौजूद रहते हैं। मैं जिस वक्त उसकी सोच पढ़ रहा था उस वक्त भी इसराइली और अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले वहाँ मौजूद थे। अल्पा कह रही थी, मैं जॉन लेम्बोर्डा के ख्याल ख्वानी करने वालों को समझाती हूँ वो राइमा के दिमाग से निकल जाएं। पास्को रूट ने कहा, एक थका देने वाले इंतज़ार के बाद राइमा ज़हनी इंतशार से निकल आई है। देखो, ये सही तरतीब से अपने मौजूदा हालात के मुतल्लिक सोचती जा रही है। अब इसे काबू में करने का वक्त आया है तो तुम हमें जाने को कह रही हो। यह दुरुस्त था कि उसका ज़हनी इंतशार ख़त्म हो गया था और वो मेरी तहरीक पर अपने मौजूदा हालात बयान कर रही थी। दुश्मन ये समझ रहे थे कि वो नॉर्मल होकर खुद ही ये तमाम बातें सोच रही है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब डैनियल ने यहूदियों के साथ गद्दारी की है और राइमा पर होने वाले अमल को नाकाम बना दिया है तो डैनियल को सज़ा दी गई होगी। उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला किया गया होगा ताकि वो दोबारा राइमा के दिमाग में ना पहुँचे। मैंने राइमा की सोच में कहा, डैनियल चोरी से मेरे पास आया था। वो जे मॉर्गन के अमल को नाकाम बनाकर खुद अमल कर रहा था। ऐसे ही वक्त अल्पा पहुंच गई थी। मैंने ये कहकर राइमा को डैनियल की आवाज़ और लहजे के मुतल्लिक सोचने पर मजबूर किया। वो सोचने लगी। चूंकि टेलीपैथी जानती थी और दूसरों के लहजों को याद रखने की आदी थी, इसलिए सही तौर पर उसके लहजे को याद कर रही थी। मैं उस लहजे को गिरफ्त में लेते ही डैनियल के दिमाग में पहुंच गया। इसराइली फौजी जवानों ने उसे एक बेडरूम में कैद कर रखा था। जे मॉर्गन ने एक बार उसके दिमाग में आकर कहा, डैनियल, मैं गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से यह कहने आया हूं कि गद्दार की सज़ा मौत होती है, लेकिन तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी तो हमारे टेलीपैथी जानने वालों में से एक कम हो जाएगा, जो हमारे मुल्क का नुकसान है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे बल्कि तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे, तुम्हारे दिमाग से गद्दारी ख़त्म करेंगे और वफादारी कूट कूट कर भर देंगे। डैनियल के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि ब्रेन वॉश करके उसकी शख्सियत तब्दील की जाएगी। ऐसा अब तक इसलिए नहीं किया गया था कि तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वाले एक तरफ शाहीना और कामरान के दिमागों में थे, बाकी जे मॉर्गन और अल्पा राइमा की निगरानी कर रहे थे। गोल्डन ब्रेन्स का ख्याल ये होगा कि हम में से कोई डैनियल के मामला तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं पहुंच गया था और ये फैसला कर ही लिया था कि उनके एक एक टेलीपैथी जानने वाले को ख़त्म करूंगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अपनी मौजूदा हिकमत अमली के नतीजे में जल्द ही एक शिकार के पास पहुंच जाऊंगा। मैंने डैनियल के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके हाथ में फल काटने वाला चाकू पकड़ा दिया। उसने चाकू की नोक को ठीक दिल वाली जगह सीने में पेवस्त कर दिया, फिर उसे खींचकर बाहर निकाला और दोबारा पेवस्त किया। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसने रूठी हुई सांसों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन मुकद्दर के खाते लिखी हुई सांसें ख़त्म हो चुकी थीं। मैं उसकी आखिरी सांस के बाद वापस आ गया। दूसरा शिकार राइमा थी। वो एक तवील इंतज़ार के बाद ज़रा नॉर्मल हुई थी। 2 फौजी जवान एक ट्रॉली में खाने पीने का सामान लाए थे। उनमें से एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अगरचे राइमा के लिए जान का ख़तरा नहीं था। जॉन लेम्बोर्डा वगैरह भी उसे जिंदा सलामत वापस हासिल करना चाहते थे, लेकिन अली तैमूर के फरार होने के बाद फौजी गार्ड्स बुला लिए गए थे। राइमा ने खुद को एडी फिशर यानी अली तैमूर की बीवी जाहिर किया था, इसलिए ये अंदेशा भी था कि जिस तरह एडी फिशर पुलिस का पहरा तोड़कर फरार हुआ है, उसी तरह राइमा को भी वहां से ले जा सकता है। इसीलिए राइमा के आसपास से पुलिस को हटाकर फौज का पहरा बिठाया गया था। खाने की ट्रॉली राइमा के सामने लाकर रखी गई तो उसने पूछा, ये क्या है? फौजी जवान खामोश खड़ा रहा। अल्पा ने उसके दिमाग में कहा, राइमा, कोई सवाल ना करो, फौजी गार्ड्स गूंगे बनकर रहेंगे। उसने पूछा, क्या मेरे दिमाग में दुश्मन छुपे हुए हैं? तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन होगा? तुम लोगों ने कॉफ़ी में दवा मिलाकर मेरे दिमाग को कमज़ोर बना दिया था। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर दूसरे भी मुझे ट्रैप करेंगे? जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हें मज़ीद तवानाई के लिए कुछ खाना पीना चाहिए। ये खाना तवानाई के लिए है या फिर मुझे कमज़ोर बनाने के लिए? तुम फजूल बहस कर रही हो। मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाकर तुम्हें ज़बरदस्ती खिला सकती हूँ। जॉन लेम्बोर्डा का कहकहा सुनाई दिया। उसने कहा, अल्पा, मैं भी राइमा के अंदर मौजूद हूँ। तुम्हें उसके दिमाग पर कब्जा जमाने नहीं दूंगा। ये हमारे मुल्क से आई है, बेहतरी इसी में है कि इसे हमारे हवाले कर दो। अल्पा ने कहा, मैं भी तुम्हारे मुल्क से आई हूँ। यहाँ जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो सब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजर कर आए हैं। तुम कितनों के लिए दावे करते रहोगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
एक दिन तुम भी मेरे पास आ जाओगी। फिलहाल रायमा के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिशें जारी रखने के लिए इसे जिंदा रखना ज़रूरी है। जिंदा रखने के लिए इसका खाना पीना लाजमी है। लेम्बोडा ने कहा, तो फिर इसकी बात मान लो। फौजी गार्ड्स को बोलने का मौका दो। वो रायमा को बताएगा कि उसके लिए क्या कुछ खाने को लाया है। बेहतर है कि गार्ड हर खाना पहले खुद थोड़ा थोड़ा खाकर दिखाए और रायमा को मुतमईन करे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।